Hello students, myself Rakesh Misra. In previous video lecture, you have learned the different types of mutation, that is gene mutation, point mutation. In this video lecture, we will learn about the different kinds of gene mutation or point mutation. So let's begin the topic gene mutation. Gene mutation. It is sometimes known as the point mutation oblique the point mutation. So don't be confused regarding the fact the gene mutation or point mutation. Both are same. Keep in mind, and it is very important to compare them the other kinds of mutation. How can you define the gene mutation or point mutation? When a point of DNA, when a certain points of DNA or the part of DNA get altered or get changed. So in this way we can say that the change in a part or points of DNA that you often known as the gene. Genes are the part of DNA or the point of DNA. So this is the mutation. Mutation due to change in a part of DNA or a segment of DNA, that is a point of DNA. There will be the mutation. Suppose that you are well familiar with the structure of DNA. Then if this part perform the change, इसमें अगर changes हो जाए तो इसको बोलेंगे gene mutation or point mutation. It may be the base pair mutation or the frame shift mutation. The base pair mutation or frame shift mutation, listen carefully. As according to base pair mutation, as per name we can say that the base pair means the nitrogenous base. You are well familiar with the adenine, guanine, cytosine, thymine are the part of DNA. They will get altered. This is the simple part of DNA as you have studied in class 11th. This is, suppose that this is adenine and this is guanine. This is the part of DNA. Then what happened in this way? We can say that the base, that is adenine, get replaced by guanine and guanine get replaced by adenine. Now the base will get changed. And it will be as the guanine and adenine. So in this way we can say that the adenine get replaced by the guanine and guanine get replaced by the adenine. This is called as base pair mutation. Now the frame shift mutation. What is frame shift mutation? This is DNA and this is two segments. The segment number 1, segment number 2. Segment number 1 will replace the segment number 2 and segment number 2 will replace the segment number 1. So you can write the change in nitrogenous base of DNA is base pair mutation, and change in sugar phosphate backbone of DNA is called as the frame shift mutation. You can write it and the example and diagram are given. So in this way, what will be the change in DNA? The result will give rise to 1, that is 1 and 2. It means in place of 2 there will be 1 and in place of 1 there will be 2. How it happened? Exam में कई बार पूछा how the frame shift mutation happened. Actually ये मैटर चैप्टर 6 का है, लेकिन अब मैंने बोला था कि सारे म्यूटेशन के कॉन्सेप्ट को मैं चैप्टर 5 में डिलीवर कर दूंगा. तो ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्यों होता है, कैसे होता है? बिकॉज ऑफ डिलीशन एंड इंसर्शन. डिलीशन क्या होता है? ये पॉइंट 1, 2 को डिलीट करके अपनी जगह ले लेगा, घुस जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, और पॉइंट 2, 1 को डिलीट करके उसकी जगह पे अपना जगह ले लेगा. तो ये डिलीशन एंड इंसर्शन के थ्रू होता है. एग्जाम में पूछता है. एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए. एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन लिख लो कॉपी में.
sickle cell anemia. This result, sickle cell anemia, are the point is the result example of point mutation. Sickle cell anemia is the result of point mutation. ठीक है, in this way the glutamic acid replaced by the valine at position 6. ये डिटेल बताया जाएगा जब मैं सिकल सेल एनीमिया पढ़ा दूंगा. ठीक है, क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड, जीन्स ऑफ ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय द valine. ये जीन रिप्लेस बाय द valine. ठीक है, ये भी जीन. लिसन, आगे हम लोग पढ़ेंगे, पढ़े भी होंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में जो उसका मोनोमेरिक यूनिट होता है, एक मोनोमर्स दूसरे मोनोमर से जुड़ता है. ठीक है, और वो किससे जुड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड से. जितने भी एमिनो एसिड होते हैं उसकी सिंथेसिस होती है डीएनए से. डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है. तीन नाइट्रोजन मिल करके एक जो है एमिनो एसिड की सिंथेसिस करते हैं. एनसीईआरटी पेज नंबर 112 पे आप जाएंगे तो एक डिक्शनरी मिलेगी, उस पे आपको तीन नाइट्रोजनस का सेट मिलेगा. वो एमआरएनए का सेट है. सबका सब क्या है, एमआरएनए का सेट है. ठीक है, तो एमआरएनए में थियामिन छोड़ के सब कुछ होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल. तो सपोज दैट एडेनिन जुड़ गया, गुआनिन जुड़ गया, गुआनिन एडेनिन गुआनिन जुड़ गया, गुआनिन यूरासिल गुआनिन जुड़ गया. तो तीन सेट मिल करके अलग अलग 20 अमीनो एसिड की सिंथेसिस करते हैं. ये सब पढ़ाया जाएगा चैप्टर 6 में. ठीक है, फिलहाल इतना जाने कि इसमें क्या होता है, वो 3 सेट जो ग्लूटामिक एसिड के लिए जीन बना रहा है वो किस पे है, डीएनए पे. डीएनए से आरएनए बनता है तो वही 3 सेट चला जाता है आरएनए में, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसी 3 सेट से क्या बन जाता है, अमीनो एसिड बन जाता है. तो होता क्या कि ग्लूटामिक एसिड का जो जीन है वो वैलिन के जीन से रिप्लेस हो जाता है, इंसर्शन और डिलीशन. ये पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन का. अब आते हैं हम लोग क्रोमोसोमल म्यूटेशन. लिसन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन पॉइंट 2. बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोमल म्यूटेशन. ये आपको जानना है, इंपॉर्टेंट भी है और ये आपको जानना है. इसको लिख लीजिए कॉपी में. म्यूटेशन ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज इन आइदर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और द नंबर ऑफ डीएनए. आइदर द स्ट्रक्चर और नंबर. या तो डी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बदल जाता है, नंबर इसमें सेम रहेगा, और या तो नंबर ही बदल जाएगा, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम का सेम रहेगा. ठीक है, तो इस वे से हम कह सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन. द स्ट्रक्चरल चेंज ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल चेंज. And let us talk about structural change first. What are structural change? Listen, structural change means the deletion, duplication, inversion and translocation. One by one I will introduce you whatever the meaning of deletion, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन. बट कीप इन माइंड, स्ट्रक्चरल चेंज में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बदल जाता है, नंबर सेम रहेगा, 23 है 23 रहेगा, 46 है तो 46 रहेगा. न्यूमेरिकल चेंज में क्या होगा, नंबर बदल जाएगा. तो इसका डिफिनीशन आप कैसे लिखेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन का? म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन आइदर स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. इसके 2 टाइप्स कैसे लिखेंगे, स्ट्रक्चरल चेंज और उसके न्यूमेरिकल चेंज लिखेंगे. म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम. अब म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एक एक करके क्या होगा, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन. यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बता दूंगा. सपोज दैट ये क्रोमोसोम का क्या है, सेंट्रोमियर है. ये क्रोमोसोम का एक टेलोमियर है, ये क्रोमोसोम का दूसरा टेलोमियर है, और ये क्रोमोसोम के मैं 4 पार्ट बना देना. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8. ये क्रोमोसोम के 4 पार्ट इधर है, 4 पार्ट उधर है, वो टोटल 8 पार्ट है. डिलीशन में क्या होगा कि कोई एक सेगमेंट डिलीट हो जाएगा.
सपोज दैट इसमें हम सेगमेंट नंबर 3 को डिलीट कर दे रहे हैं, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? रिजल्ट में हमको मिलेगा इस साइड 3 सेगमेंट और उधर एज यूजुअल कितना मिलेगा? 1, इधर 4 सेगमेंट रहेंगे, इधर 1 2 तो मिलेगा, लेकिन 3 गायब हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, बाकी 5 6 7 8 मिल जाएंगे। ये क्या फिनोमिना रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट द डिलीशन। सो हाउ कैन वी से द डिलीशन? वी कैन से व्हेन द सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम गेट डिलीटेड फ्रॉम इट्स पोजीशन देयर विल बी डिलीशन। इसको आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन को भी यहाँ पे बताते हैं, आप वीडियो को बैक करके डुप्लीकेशन नोट कर लीजिए। अब आते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या होता है कि कोई एक सेगमेंट जो है अपना नंबर रिपीट कर लेता है, कोई एक सेगमेंट अपने पोजीशन पे डबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं थर्ड को डुप्लीकेट करा दे रहा हूँ, तो इधर कुछ 4 सेगमेंट है, उधर 4 सेगमेंट है, तो इधर अब जब थर्ड 2 टाइम हो जाएगा तो इधर 5 सेगमेंट हो जाएगा, उधर 4 सेगमेंट हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 2 टाइम्स हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो 3 डुप्लीकेट हो रहा है तो 3 2 टाइम्स हो जाएगा, बाकी 5 6 7 और ये 8 एज यूजुअल है। यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डुप्लीकेशन। सो हाउ कैन वी डिफाइन द डुप्लीकेशन? ध्यान से सुनेंगे। वी कैन डिफाइन द डुप्लीकेशन एज द सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हेन गेट डबल ऑन इट्स पोजीशन। यानी कि ये थर्ड नंबर पे डबल हो गया, तो ये क्या हो गया? डुप्लीकेशन। अब आते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन आपको जानना है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इन्वर्जन। इन्वर्जन में आते हैं, इन्वर्जन में कोई 2 सेगमेंट आपस में 180 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। सपोज दैट ये सेगमेंट नंबर 2 और 3 ये 180 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। यानी कि रोटेशन में क्या होता है बेटा? थर्ड 2 पे आ जाएगा और 2 थर्ड पे चला जाएगा, यानी कि इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? नंबर ऑफ सेगमेंट एज यूजुअल रह रहा है 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, लेकिन कैसे क्या होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन? 1 तो अपनी जगह पर रहेगा, 2 की जगह पर 3 और 3 की जगह पर 2 आ जाएगा। 3 2 4 5 6 7 8, ये क्या है? इन्वर्जन। इन्वर्जन। अब वीडियो को स्लो करके लिखिए कॉपी में। ठीक है, when the 2 segments on DNA get inverted at 180 degree called duplication। ये डायग्राम बना लीजिए, इनफ है। अब आते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन को भी समझ लेते हैं जल्दी से, इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? ट्रांसलोकेशन में एक साइड का कोई सेगमेंट दूसरे साइड चला जाता है और दूसरे साइड का सेगमेंट किधर आ जाता है? एक साइड आ जाता है। ठीक है, सपोज दैट 2 जो है ये चला जाएगा किस पे? 6 पे, और 6 चला आएगा किस पे? 2 पे। तो इस तरह से क्या होगा? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का रिजल्ट क्या होगा? नंबर ऑफ सेगमेंट दोनों साइड यूजुअल रहेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर बदल जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ सेगमेंट 4 इधर 4 उधर। अब इस वजह से रिजल्ट में क्या डिफरेंट पड़ेगा? 1 6 3 4 5 2 7 8। ये 2 इधर लोकेट कर गया है और 6 इधर आ गया, तो ये क्या हो गया आपका? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन। So this is all about the different types of mutation. In next video lecture we will learn about the different other types of mutation, that is numerical change in mutation. Thank you.